Well, hello and a very warm welcome to one and all joining us from different parts of the world tonight. I am Lion Navdeep Nigam, the Vice President of Lions Club of Mumbai Soul, the club mentor for Loyo Club of Mumbai Soul, and the District Advisor for Leo District 3231A3, and your host on this fantastic 180th episode of the Masterclass series, The Soul of Lions. Brought to you by Lions Club of Mumbai Soul, Leo Club of Mumbai Soul, and Vishwa Sindhi Seva Sangam, powered by Property Anthem India Private Limited and Khanville Resort Silvassa. Also, ably supported by our partners, the Green Exim, the International Agro Export Corporation, DC Prop Fund, DC Gallery, GreatX Corporate Services Limited, and Lion Lata Avtani, the International President of the Women's Wing, Vishwa Sindhi Seva Sangam. Well, with the support of all our lovely sponsors and the guidance of our brilliant mentor, Lion Dr. Raju Manwani, we are here with yet another enthralling episode of The Soul of Lions. Ladies and gentlemen, on the show tonight, we have two incredibly prominent Lion leaders who've been the embodiment of Lionistic acumen and incredible tenacity since their advent into the movement for more than 4 decades. They've been individuals who have tackled the mantle of responsibility with utmost pride and excellence. During their tenures at the club, district, as well as the multiple level, they've been exemplary Lions and strive to serve the society at its best. Our first guest for the evening commenced his Lionism journey in the year 1987 with the Karachi Federal Lions Clubs as a charter director. Owed to his immaculate traits of leadership and excellence, he has been bestowed the honor of holding various offices within the association, including the club secretary, treasurer, president, zone chairman, region chairman, and also numerous other posts at the district and the cabinet levels. Finally, owed to his incredible contribution in Lionism, he has assumed the post of the second vice district governor and now stands at the cusp of taking up the integral role of the district governor and serving the society even further. Owed to his unimpeachable record, he has been a recipient of numerous laurels and awards at the district as well as the multiple level. Some of the ones at the international level have also been honored and bestowed upon him have been the International President's Appreciation Certificates, International President's Appreciation Pins, some leadership medals, and a plethora of other awards at the district as well as the multiple level. In addition to his Lionistic activities, he's also been an eminently successful banker and is now associated with the Karachi Bar Association. Ladies and gentlemen, it's an absolute privilege for me to call upon the tremendously dedicated Lion, serving society with all his might, Lion Noor Sayyam, sir. नूर सर, आवाज आ रही है मेरी आपको? प्रदीप जी, if you could just check अगर थोड़ा सा I believe थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है तो एक सेकंड जरा जफर भाई जो है ना उनको लिंक नहीं मिल रहा है, मैं लिंक दे दूं उनको अगर आप इजाजत दें। आई बिलीव नूर सर हमारे टेक्निकल डायरेक्टर वो कोऑर्डिनेट कर लेंगे। आप हमें व्हाट्सएप पर भेज देंगे। ठीक है, आप उनको दे दीजिए। जी, आई वुड रिक्वेस्ट प्रदीप जी अगर आप सैयद सर को लिंक भेज सकते हैं सो दैट ही कैन जॉइन अस एज द सेकंड गेस्ट। नूर सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर शो पे आने का, अपना कीमती वक्त दे रहे हैं आज हमें आप। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुनिया के 117 ममालिक में रहने वाले लायंस दोस्तों, विश्व सिंधी सेवा संग्राम के मेंबरान, उनके कार्यकर्ताओं, उनके दर्शकों को लायन नूर का आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं पीआईडी राजू मनवानी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस मंच पे इस एपोसिट में निमंत्रित किया। एब्सोल्युटली नूर सर, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ आज इस शो पर जुड़े हैं। काफ़ी सारी बातें जो आपसे करनी है, बहुत सारी चीज़ें हम लायनिज्म के बारे में भी जानना चाहेंगे, पर थोड़ा सा सर शुरुआत करेंगे फ्लैशबैक में जाकर। थोड़ा सा अगर आप हमारे जितने व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, 100 कंट्री से भी ज़्यादा व्यूअर्स जुड़े हैं इस शो में, उन्हें थोड़ा सा लायन नूर के बारे में बता सकेंगे। आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ पले बड़े, और फाइनली लायनिज्म के साथ किस तरीके से आप जुड़े? मेरा ताल्लुक सिटी ऑफ जॉय, रविंद्रनाथ टैगोर का सिटी, आने वाला प्रेसिडेंट एपी सिंह के सिटी से है। आप समझ गए होंगे कि मेरा ताल्लुक वेस्ट बंगाल कलकत्ता से है। मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा, वहीं से मैंने इंटर तक की तालीम हासिल की
उसके बाद मैं ऑफ हो गया पाकिस्तान में। मेरी फैमिली के अब तक तकरीबन 60% फैमिली मेंबर्स कलकत्ता में मुकीम हैं। लास्टली मैं 2012 में कलकत्ता विजिट किया। पाकिस्तान आने के बाद मैंने एक फर्म ज्वाइन किया, प्राइवेट फर्म। उसके बाद पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज में जॉब किया। वहां से मैंने स्विच किया बैंक को, एंड 41.5 years आई हैव सर्व्ड एज ए बैंकर। आपने अभी बता दिया है। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। नूर सर, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली सक्सेसफुल करियर रहा है आपका। थोड़ा सा आपके सर्विस साइड के बारे में भी जानना चाहेंगे। लायनिज्म से किस तरीके से आपके ताल्लुकात हुए और किस तरीके से आपने लायनिज्म ज्वाइन किया सर? जब मैं बैंक में था तो हमारे एक असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट थे, मिस्टर DH रिजवी। उनका लेटर्स आता था, उसके ऊपर लिखा रहता था लायन DH रिजवी। मुझे बड़ा तजस्सुस होता था कि ये लायन क्यों लिखा हुआ है। मैं उस वक्त पर्सनल डिपार्टमेंट हुआ करता था। एक दिन उन्होंने बुलाया मुझे किसी काम से, तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये आपके नाम के आगे लायंस क्यों लिखा हुआ है। तो ही हैज एक्सप्लेन मी लायनिज्म क्या होता है। उसके बाद कुछ ऐसा गुजरा तो मेरी रिहाइश जहाँ पर है, यहाँ पर एक दोस्त MSD मर्कशॉप एंड डोम मेडिकल कंपनी है, उसमें वो काम करते थे। उन्होंने मुझे कहा कि यार हम एक क्लब बना रहे हैं लायंस क्लब्स इंटरनेशनल के नाम से, उस क्लब में मैं चाहता हूं कि आप एज ए चार्टर्ड मेंबर लेकर आए। इस तरह से मेरा ज्वाइनिंग हुआ। 3 दिसंबर 1987 को मैंने लायनिज्म ज्वाइन किया। और क्लब लेवल के ऊपर में आपने अभी बता दिया कि साहब फ्रॉम टेल ट्विस्टर टू लेकर प्रेसिडेंट तक के सफर मेरा रहा। जी, बहुत खूब नूर साहब, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। सबसे ज्यादा तो इस बात पर भी कि 3 डेकेड से भी ज्यादा आप लायनिज्म से जुड़े हुए हैं। बहुत काम किया है आपने सोसाइटी के लिए। थोड़ा सर आपकी जर्नी को ब्रेक करके जानना चाहेंगे हम ज्यादा इसके बारे में। आपने सर 87 में लायनिज्म ज्वाइन किया, और ऑब्वियसली आपने वो दशक भी देखा है जब चीजें डिजिटाइज्ड नहीं थी, बहुत सारा नॉन एनालॉग लेवल पर काम होता था, और उसके बाद हम डिजिटाइज्ड एज में पहुंचे, मिलेनियम आया। तो थोड़ा सा सर आपसे शुरुआती सालों के बारे में जानना चाहूंगा, और ये भी जानना चाहूंगा कि हर बार जब मैं किसी लाइन से बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं सब लोगों का जो ज्वाइन करने का जर्नी होती है वो थोड़ी सी अलग होती है एक दूसरे से। पर कहीं ना कहीं हर एक लायन की जिंदगी में एक पॉइंट ऐसा आता है, या एक कोई वाकयात ऐसा आता है, या कोई इंसिडेंट ऐसा आता है जिसकी वजह से उसे लगता है कि मुझे लायनिज्म से और ज्यादा जुड़े रहना चाहिए और हमेशा काम करते रहना चाहिए। तो आपके जिंदगी में वो ऐसा इंसिडेंट कौन सा है? देखिए, जब हम लोग पहले ज्वाइन किया उस वक्त ये, जैसा कि आपने अभी कहा कि उस वक्त कंप्यूटर नहीं था, हमें PU 101 वगैरह जो है सारी चीजें हमें हाथ से लिखनी पड़ती थी, और हाथ से लिखने के बाद हम उसे जो है ना पैक करके को बाय डाक भेजना पड़ता था, और वहां से तमाम क्रॉसपेंडेंस होते थे, तमाम चीजें उस तरह से होती थी। वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी बदली, और टेक्नोलॉजी बदलते के साथ ही उस तरह से हुआ। लायनिज्म का जो आपने भी पूछा कि कौन सा ऐसा मोड़ आया जिसमें आपने कहा कि लायनिज्म को जुड़े रहना है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन। मैंने जब सर्विस शुरू किया, आपने शायद देखा होगा कि मैं अपने हाथों से लोगों को जो है ना खाना खिलाता रहा। वो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन थी, और उसी सेल्फ सेटिस्फेक्शन ने मुझे इस सफर को जो है ना कंटिन्यू रखने का दर्श दिया। जबरदस्त। सर आपकी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव जर्नी रही है लायनिज्म में। एक तरीके से देखा जाए तो सारी पोस्ट होल्ड कर कर उसके बाद आगे पहुंचना, एक तरीके से कई लोग ये जर्नी कर भी नहीं पाते, क्योंकि सारी पोस्ट होल्ड करना और हर एक लेवल पर काम करना जरा कई लोगों के लिए काफी मुश्किल रहता है, और क्लब के फॉर्मेशन के हिसाब से भी कई बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता। आपका सर जो टेल ट्विस्टर से लेके प्रेसिडेंट तक का सफर था वो कैसा रहा, और उससे आपकी जिंदगी में पर्सनली किस तरीके से ग्रोथ हुई जो आपने महसूस करी? आई हैव लर्नड ए लॉट फ्रॉम द लायनिज्म। मैंने बहुत कुछ सीखा अपने बड़ों से, देखता था। इस हद तक आपको मैं बताऊं बिला मुबालगा कि हम अपने बड़ों के लिए जो है ना कुर्सियां लगाते थे, कुर्सियां लगाते थे कि बड़े आएंगे हमारे
पांच गवर्नर आएंगे, पांच काउंसिल चेयरपर्सन आएंगे, उन लोगों को लेकर आता था। जो आपकी जो पौधा है ना, वो इस तरह से नहीं कर रही है, प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखती है। हम प्रोटोकॉल का बहुत ख्याल रखते थे और आज भी रखते हैं हम इस प्रोटोकॉल का ख्याल। इसके अंदर में जो है अपने तमाम रिसोर्सेस को, तमाम कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल किया करते हुए ड्यूरिंग दिस वेरी शॉर्ट पीरियड, अभी भी मैं समझता हूं कि ये मेरा बहुत शॉर्ट पीरियड है लाइनिज्म में। इसके अंदर में 150 प्लस मेंबर्स इंट्रोड्यूस करवाया। 11 आपके क्लब को जो है मैंने चार्टर्ड करवाया है। प्रोजेक्ट में भी बहुत बेतहाशा काम है। अभी हमारा क्लब, जिस क्लब का मैं इस वक्त मेंबर हूं, ये पाकिस्तान का चौथा क्लब है, 4th क्लब ऑफ द पाकिस्तान जो चार्टर्ड हुआ है। जबरदस्त सर। एक और चीज जैसे आपने सही में कहा, ये भी मैं जानना चाहूंगा सर कि जैसे आप डिस्ट्रिक्ट पर आप काफी ज्यादा एक्टिव हैं और वहां पर आपने ऑब्वियसली पोजीशन संभाली हुई है। कई बार हम ये देखते हैं कि लायंस का जो सफर क्लब में होता है, ऑब्वियसली क्लब में जब हम आगे पोजीशंस पर पहुंचते हैं तो कई सारे लोगों को काफी अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि बोर्ड मीटिंग्स होती हैं पूरे साल और मिलना भी कई बार हो पाता है। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट पर पहुंचते हैं तो थोड़ी सी जिम्मेदारी जरा सडनली बढ़ जाती है और कई सारे ऐसे क्लबों की भी जिम्मेदारी मिलती है जिनके साथ शायद इंटरेक्शन ना हुआ हो। क्लब्स जो आपके क्लब के मुकाबले शायद थोड़े निचले स्तर पर हों या थोड़े यंग हो, और कुछ हो जिनमें पॉपुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो, तो जो ये डिस्पैरिटी सडनली डिस्ट्रिक्ट में फेस करने मिलती है और उसके बाद इसका चैलेंज दिया जाता है सर, वो वाली जर्नी आपकी कैसी रही? बहुत अच्छी रही। मुझे जब जोन चेयरमैन बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रहा, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन यूथ एक्सचेंज से मैंने शुरू किया था सफर। पहला सफर जो था हमारा डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन यूथ एक्सचेंज से रहा। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एंड बायलॉज के लिए हमने 4 साल डिस्ट्रिक्ट के कॉन्स्टिट्यूशन एंड बायलॉज का चेयरमैन रहा, जोन चेयरमैन रहा। जोन चेयरमैन जब रहा तो मेरे पास 5 क्लब दिए गए थे उस वक्त क्लब कम थे। हर एक क्लब को मैंने विजिट किया और हर क्लब के मेंबर से प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर को जाकर मैं मिलता था और मिल करके उन्हें तमाम चीजें बताता था और इस तरह से जो है हमने उन लोगों को मोटिवेट किया। बहुत सारे क्लबों ने जहां पर 15 मेंबर थे, 16 मेंबर थे, उसको 20 मेंबर तक करवाने की कोशिश किया। एक क्लब ऐसा भी था जो मुझे मिला था, उसमें सिर्फ 7 मेंबर थे और ड्यूरिंग माय टेन्योर एज ए जोन चेयरपर्सन उस क्लब में 25 मेंबर लेकर के आए हम। वाह, जबरदस्त सर, काफी ज्यादा इंटाइसिंग सफर रहा है आपका। थोड़ा सा सर आपके क्लब प्रेसिडेंटशिप के बारे में भी मैं जानना चाहूंगा। कई साल अलग अलग स्तरों पर काम करके क्लब के अंदर ही काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती है इंडिविजुअली एज अ पर्सन भी, और फाइनली जब प्रेसिडेंटशिप का दौर आता है तो वो एक साल होता है जो बहुत मेमोरेबल होता है हर एक लायन के लिए। थोड़ा बहुत अपने प्रेसिडेंशियल ईयर के बारे में अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें, और ये भी जानना चाहूंगा कि प्रेसिडेंशियल ईयर में कोई भी 2 प्रोजेक्ट्स जो आपके दिल के काफी करीब थे और आपको लगा सोसाइटी पर बहुत इम्पैक्ट हुआ उनका, उनके बारे में भी अगर आप बताना चाहें। देखिए, प्रेसिडेंटशिप जिस वक्त हमने लिया तो मेरे क्लब ने यूनानिमसली मुझे वोट दिया और उस सूरत के ऊपर में हमने कहा नहीं नूर सर, आवाज आ रही है आपको? जी जी हाँ, आवाज आ रही है जी। हेलो आवाज आ रही है? बोलिए। जी बिल्कुल आ रही है, जी बोलिए। 1999 पीआईडी नीलूफर बख्तियार का साल, जिस वक्त वो फर्स्ट लेडी ऑफ द डायरेक्टर बनी। उस वक्त मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया स्कूल का। उस वक्त प्रेसिडेंट मैंने स्कूल का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और वो इन द नेम ऑफ पीआईडी नीलूफर बख्तियार, लायन नीलूफर बख्तियार वेलफेयर स्कूल, उस पर 30 बच्चे से मैंने वो सफर शुरू किया था और आज उसमें 300 बच्चे पढ़ रहे हैं। 99 से अब तक वो प्रोजेक्ट मेरा लगाया हुआ पौधा अब तक चल रहा है।
ये सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर था कि एज ए प्रेसिडेंट मैंने उसको ओन किया। और नीलूफर बख्तियार के नाम से उसके ऊपर में कोई फंडिंग किसी कॉर्नर से नहीं है, किसी कॉर्नर से फ्री ऑफ कॉस्ट वो स्कूल चल रहा है। उसके स्कूल के तमाम अखराजात मेरे क्लब के मेंबरान उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। ये वाह सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की पोजीशन के ऊपर कुछ सवाल है मेरे। एक तो सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की पोजीशन आपने बहुत अच्छे से बखूबी निभाई। मेरा सवाल सर ये है कि जनरली जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नरशिप की लाइन में हम आ जाते हैं और सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के बाद फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की ये दो पोस्ट होती हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनने से पहले, इनमें खासा तवज्जो दिया जाता है लीडरशिप पर और मेंबरशिप पर, और लर्निंग का एक बहुत बड़ा ये पैच होता है जो निभाया जाता है। तो आपका पर्सनली सर सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का जो पोजीशन का एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा, और किन किन चीजों पर आपने सबसे ज्यादा तवज्जो दिया सर? तमाम लाइंस के डिस्ट्रिक्ट के तमाम लाइंस को लेकर मैं चला, तमाम लोगों के साथ मैं जुड़ा रहा, हर क्लब को विजिट किया एज ए सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, और अभी मैं एज ए वाइस गवर्नर भी अपने गवर्नर के साथ हर जगह जा रहा हूँ। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर मेरी मौजूदगी नहीं होती है। लर्निंग का जहां तक ताल्लुक है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारी जितनी क्लासेस हुई वो इंटरनेशनल से जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है वो उसको भी कंप्लीट मैंने किया हुआ है। राजेश मेहरा साहब हमारे ग्रुप लीडर हैं, आप जानते ही हैं उन्हें, और ही इज वेरी स्ट्रिक्ट। वो रोजाना उनका मैसेज आ जाता है, फोन करते हैं, नूर क्या हुआ क्या हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 100% मैंने कंप्लीट किया हुआ है। बहुत ही जबरदस्त बात है सर। आई थिंक ये एक चीज है जो हमारे पूरे लायनिज्म में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर आपने अपने लायनिज्म की जर्नी में आपने लर्निंग पर काफी ज्यादा ध्यान दिया है। यू हैव बीन द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ 305 ऑफ साउथ एशिया लायंस लीडरशिप इंस्टीट्यूट ऑल्सो। आपने RLLIs भी काफी अटेंड किए हैं, आप सर्टिफाइड गाइडिंग लायन भी रहे हैं, जो कि काफी बड़े अचीवमेंट्स हैं लायनिज्म में। सबसे पहले तो मैं सर ये चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा ये बताएं कि जो लायनिज्म ने लायंस को और लियोस को दोनों को ये मौका दिया है लर्निंग का लीडरशिप इंस्टीट्यूट्स के थ्रू, ये कितना इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट है और कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल इनिशिएटिव है। और दूसरा सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि लायंस लीडरशिप इंस्टीट्यूट से आपको पर्सनली कितना ज्यादा एवोल्यूशन महसूस हुआ है सर? आज मैं जिस मुकाम पे खड़ा हूं ये लायंस लीडरशिप इंस्टीट्यूट की बदौलत है। आगे बढ़ने के लिए लायंस लीडरशिप के जितने भी क्लासेस होते हैं, चाहे वो ELLI हो, DLLI हो, LLI हो, AR हो, और अब तो वो साउथ एशिया लायंस लीडरशिप तो वो एक ही मर्तबा हुआ, उसके बाद वो बंद हो गया। साउथ एशिया लायंस लीडरशिप 1997-98 में हुआ था, उसके बाद वो क्लासेस नहीं हुआ। फर्स्ट पार्ट उसका जो है बेंगलोर में था, सेकंड पार्ट कलकत्ता में था, उसके बाद वो नहीं हुआ। बाकी चीज तो आगे बढ़ने के लिए हर लायंस को उसको अटेंड करना बहुत, मैं समझता हूँ, जरूरी है। उसके बगैर आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। वहाँ जो हमारे सीनियर्स होते हैं, हमारे जो मेंटोर होते हैं, वो एक विद्या होते हैं, एक सागर होते हैं हमारे लायनिज्म के। उनसे बहुत कुछ सीखने का और हर चीज समझने का मौका हमें फराहम किया जाता है। लिहाजा मेरी तो यही पैगाम होगा कि हर लाइन जिसने आगे बढ़ना है, जिसने प्रेसिडेंट बनना है, इवन प्रेसिडेंट के लिए भी उस जगह पे जो है ना जाना चाहिए। एब्सोल्युटली, बहुत सही कहा सर आपने। लीडरशिप पर ही बात करते करते सर मैं एक और चीज आपसे यही पूछना चाह रहा था कि कई बार सर हम देखते हैं कि लायनिज्म ज्वाइन करने के बाद प्रोजेक्ट्स पर आकर लोग थोड़ा ज्यादा जो है सर्विस प्रोजेक्ट्स की तरफ मोहित हो जाते हैं और उसकी वजह से वो ग्रास रूट लेवल पर काम करने लगते हैं, लेकिन जो नॉलेज और जो टूल्स और जो इक्विपमेंट्स लायनिज्म प्रोवाइड करता है उसके बारे में जानकारी ज्यादा ले नहीं पाते। इसकी वजह से वो लायनिज्म में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, जबकि ग्रास रूट पर बहुत अच्छा काम करते हैं। तो लीडरशिप का जो, और लीडरशिप इंस्टीट्यूट्स में भी हमने जैसे सर ये कई बार देखा है कि
कुछ ही नंबर ऑफ सीट्स होती हैं जो अवेलेबल होती हैं लोगों के लिए, जबकि अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन जो आजकल ज्वाइन कर रही है वो काफ़ी ज़्यादा है लायनिज्म को। तो इसके बारे में सर आपका क्या पर्सपेक्टिव होगा सर? इन द मीन टाइम सर, राजू सर का मैसेज आपके लिए है कि ही इज ऑन द वे फ्रॉम ऊटी टू मैसूर। वो देख रहे हैं आपको, लेकिन ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यूज, बट ही इज विशिंग यू ऑल द बेस्ट सर। I think he will join at the time of my PCC line Zafar Iqbal साहब। उस वक्त तक शायद वो ज्वाइन कर लें। मैं यहाँ से देख करके मैं खुद मिस कर रहा हूँ। वो छोटा भाई है मेरा, छोटे भाई की तरह है, वो बड़े भाई की तरह मुझे इज्जत देते हैं, हर वक्त उनका के साथ मेरा राब्ता रहता है। जी सर। जी, तो सर मैं यही कहना चाह रहा था कि कई बार हम देखते हैं कि ग्रास रूट लेवल्स पर लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्तर पर काम करते हैं, लेकिन लीडरशिप की जो चीज़ें हैं या लायंस जो उन्हें चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है या इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है, उनके बारे में जानकारी नहीं ले पाते। तो कहीं ना कहीं सर ये जो लीडरशिप इंस्टीट्यूट्स हैं, इनका और लायंस का जो कनेक्ट है वो अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी अवेयरनेस उसके बारे में मिसिंग है। तो आपका क्या इस पर पर्सपेक्टिव है कि किस तरीके से इसको बढ़ाया जाए? डिस्ट्रिक्ट की लीडरशिप को चाहिए, डिस्ट्रिक्ट की लीडरशिप को चाहिए, जो ग्रास रूट के लोग हैं उसको ऊपर आहिस्ता आहिस्ता लेकर के आए। हमारे यहाँ पर ये होता आ रहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये हो रहा है कि हमने जो है ना काफी हमारी खवातीन 5 गवर्नर बनी हैं, 5 पीडीजीज बनी हैं, गवर्नर्स बने हैं। ग्रास रूट से जो है ना आहिस्ता आहिस्ता करके उनको ऊपर लाया गया है। और ये चीज डिस्ट्रिक्ट की जो लीडरशिप है उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसमें से जो है ना पिक करें। हमें मालूम है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में 1200 1250 मेंबर्स होते हैं, उसके अंदर से लिमिटेड सीट्स होते हैं। हमारे पास है 30-35 सीटें होती हैं लीडरशिप के अंदर। जब हम RLLI कराते हैं उस वक्त भी यही होता है, ELLI भी कराते हैं। तो उसके अंदर से जो है ना उसके क्रीम को जो है ना उठाना जो है ना, इसलिए कि हमारी लीडरशिप की जो है ना नजरें हर एक के ऊपर होती है कि किसके अंदर में कितनी पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को उनको कैच करना पड़ता है। अब आप मुझे देख लें कि मैं बिल्कुल ग्रास रूट से आया था, आहिस्ता 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 ग्रेजुअली हमारी लीडरशिप ने हमें जो है ना ऊपर की तरफ लाया। इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट को यही चाहिए। जी बिल्कुल। सर थोड़ा सा मैं आपसे थोड़ा सा चाहूंगा कि आप थोड़ी सी लाइट लियोस के ऊपर भी डालें। मैं खुद लियो डिस्ट्रिक्ट एडवाइजर हूँ यहाँ इंडिया में, और ये जरूर जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान में लियोस का कई सारे क्लब्स हैं जिनसे पाकिस्तान में भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। लियोस से काफी ज्यादा एक्टिव कई जगह पर लियो क्लब्स हैं। आपका पर्सपेक्टिव एज अ लायन जानना चाहूंगा लियोस के बारे में, और कहाँ देखते हैं आप लियोस को अगले 4 से 5 सालों में? They are the future of Lionism. They are the future of Lionism. इत्तेफाक ये है कि हमारे यहाँ पर, टू बी वेरी फ्रैंक, हमारे यहाँ पर थोड़ी सी उसकी में कमी महसूस होती है, जबकि आपके यहाँ पर जो है पूरा ल्यूज है, ल्यूज के डिस्ट्रिक्ट है, सारी चीजें हैं। हमारे यहाँ थोड़ी उसकी कमी है, उसके ऊपर में हमें काम करने की सख्त जरूरत है। हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट है, तीनों डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट में है, हमें उस पर काम करने की जरूरत है। और मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में अपनी जो सीनियर लीडरशिप है उनसे मैंने कहा है कि साहब हमारे दौर पे जो है ना कम से कम इसको जो है ना लायंस के ल्यूज को जो है ना उजागर किया जाए, ल्यूज को बनाया जाए। और दे हैव वेरी काइंडली ऑनर मी माय रिक्वेस्ट। और उन्होंने कहा है कि अभी आप जफर साहब आएंगे, जफर साहब से भी पूछिएगा, वो भी बताएंगे कि हम उसके ऊपर में काम कर रहे हैं और उसके चाहिए। इसलिए कि हम समझते हैं कि विदाउट ल्यूज के हमारे प्रोजेक्ट्स को रन करना जो है ना, जो सर्विसेज है, सर्विसेज को रन करना जो है ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कि बहुत सारे लोग अबव 50 और अबव 40 के हैं, जो काम यंग लड़के जो है ना 20-22 के जो हमारे यंग हैं, यूथ है, वो जब तक साथ दें तो हमारी जो है ना सर्विसेज जो है ना ज्यादा उभर कर सामने आती है, उसमें हमें बहुत सारे हेल्प मिलते हैं सर। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा सर आपने। लियोस को बढ़ावा देना ही चाहिए, एंड आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी गवर्नरशिप के समय पर ये रेजोल्यूशन भी रखा है। इट इज ग्रेट, एंड आई होप कि बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन हो। पर आई बिलीव पाकिस्तान में कई सारे लियो क्लब्स के साथ हम लोगों ने काम किया है, एंड आई बिलीव बहुत अच्छा फ्यूचर है जिस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं अभी, और ज़्यादा थोड़ा सा और पुश मिले तो बहुत अच्छा और काम कर सकते हैं सर। मूविंग ऑन सर, इंटरनेशनल अवार्ड्स के बारे में और परमानेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहूँगा। सबसे पहले परमानेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहूँगा।
आपसे सर थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता सकें कि किस तरीके के आपके नज़रिए से परमानेंट प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में चल रहे हैं लायनिज्म से जुड़े हुए, और कितना ज़्यादा इम्पैक्ट वो सोसाइटी पर छोड़ते हैं सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है कम से मोर और लेस तकरीबन 10 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो साल से चल रहे हैं। हमारा एक क्लब है डिस्ट्रिक्ट में साउथ में, हैदराबाद होस्ट लायंस क्लब। इट इज द थर्ड क्लब ऑफ पाकिस्तान, ये तीसरा क्लब है पाकिस्तान का। और फ्रॉम द डेट ऑफ चार्टर्ड उनकी सर्विस में इजाफा होता जा रहा है। हमारे जो है ना, जो साल में उनकी जो है 5 दिन की जो है आई कैंप जो करते हैं, उसके अंदर में कम से कम 3 से 3.5 हजार लोगों की आई की सर्जरी करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा दूसरा कराची में भी है। आई के ऊपर में हमारे डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा काम हो रहा है, आई के ऊपर में, और हंगर के ऊपर में भी हम काम कर रहे हैं। डेफिनेटली सर, मिशन 1.5 जो है एक बहुत बड़ी दिस इज अ बिग चैलेंज जी, इट इज अ बिग चैलेंज फॉर अस। जी मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि ये जो मिशन 1.5 की जो मुहिम हमारी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट पैटी हिल ने चलाई है, मैडम पैटी हिल का ये मानना है कि रिटेंशन एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है जिससे हम इस टारगेट पर पहुंच सकते हैं। तो मेंबरशिप से रिलेटेड और रिटेंशन दोनों चीजों से रिलेटेड आपका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगा सर। होता ये है भाई, आपके यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ भी होता है, खास करके सब कॉन्टिनेंट में होता है कि कन्वेंशन जब होता है उस वक्त के बाद जो है ना कुछ मेंबरशिप ड्रॉप हो जाता है। इससे हम भाग नहीं सकते। इसको आप एग्री करें कि हाँ ये हो रहा है, दोनों साइड में होता है, हर जगह पे होता है कि जब कन्वेंशन होता है, कन्वेंशन में जो ओपिनियन होते हैं, जो चीजें होती है, उसके बाद जो है ना कुछ मेंबरशिप ड्रॉप हो जाते हैं। फिर उस मेंबरशिप को जो है ना आगे बढ़ाने के लिए बहुत तगोदू करने पड़ते हैं, उसको बहुत तगोदू करने पड़ते हैं। अभी हमारे लिए पास जो है 1.5 जो मिशन दिया है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए है। एंड वी हैव एक्सेप्टेड कि साहब हमारी जो प्रेसिडेंट है उनका और आने वाले प्रेसिडेंट्स के लिए जो है ना वी हैव टू वर्क। हमारे अपने जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उन कॉन्टैक्ट्स को हमें यूज करना पड़ेगा। उसके लिए जो है ना मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और मार्केटिंग के लिए प्रॉपर बंदे को जो है ना डिस्ट्रिक्ट को अपॉइंट करना पड़ेगा। लाइकिंग और डिसलाइकिंग के ऊपर में अगर हम पीआर के बंदे को कर लेंगे तो वो बात नहीं बनेगी। हमें जो है ना एक ऐसे आदमी को जो है ना मार्केटिंग के लिए देना पड़ेगा कि साहब वो मार्केटिंग करें और उससे मेंबरशिप हमारे आए, उसकी तमाम चीज़ों को करें, वो सेमिनार करें, अपना किसी प्रोजेक्ट को विजिट करवाएं, तो इस तरह से मेंबरशिप बढ़ेगी। डेफिनेटली। और ये बहुत जी सर, एक बात आपने बहुत अच्छी कही अभी मार्केटिंग से रिलेटेड कि मार्केटिंग की सख्त ज़रूरत है, और जो कि इंटरनेशनल ने भी फील किया है। पिछले 1 साल 1.5 साल में उन्होंने मार्केटिंग वर्टिकल भी खोला है जिसके तहत काफ़ी ज़्यादा प्रमोशंस की भी बातें की जा रही हैं। सर इतने सालों से लायंस बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि किसी ना, और कई बार हमने ये भी देखा है सर कि 70s के 80s के 90s के दशकों में कई सारे जितने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स और इंटरनेशनल डायरेक्टर्स आए हैं, उन्होंने कहा है कि, और उन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बताया कि लायनिज्म की जो पॉपुलैरिटी उस समय थी वो बहुत ज़्यादा थी, और धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई है उस आने के बावजूद थोड़ी थोड़ी हमारी पॉपुलैरिटी लेवल्स गिरे हैं। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं सर, और क्या रीजन लगता है आपको सबसे ज्यादा कि इतना काम करने के बाद भी लायनिज्म इतना ज्यादा स्तर पर पॉपुलैरिटी नहीं पा पाया है जितना जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यूनिसेफ वगैरह हैं? तो क्यों सर, इसका क्या रीजन हो सकता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट। सही मोटिवेशन। हमारे यहाँ जो है ना क्लब के अंदर में इन्वॉल्वमेंट ना होने की वजह से बहुत सारे लोग छोड़ जाते हैं। क्लब के अंदर जितने लोग होते हैं, अगर 20 मेंबर हैं तो 20 मेंबर्स को इन्वॉल्व करना ये क्लब की लीडरशिप की जिम्मेदारी है।
अगर आप 5 या 6 या 8 को जो है ना आप एक घेरे में रखेंगे और बाकी को इग्नोर करेंगे तो वो अल्टीमेटली जो है ना बदल हो जाते हैं। एक वक्त था कि 1.4 हम क्रॉस कर चुके थे, 1.4 मिलियन हम कहा करते थे, आज हम 1.4 भी नहीं कर पा रहे हैं। 1.5 तो हमारे टारगेट है, लेकिन हम हम नजदीक हैं, 1.4 के नजदीक हैं इस वक्त, 1.4 के करीब हैं, लेकिन 1.5 हमारा, तो पहले हम 1.4 क्रॉस कर चुके थे। तो उसमें यही होता है कि क्लब को जो है ना, क्लब के अंदर जो है ना, जब तक आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे अपने मेंबरान को, तो वो थोड़ी दिन के बाद जो है ना बदल हो जाएंगे। कैसे अब हमें कोई अहमियत नहीं दी जा रही है, लिहाजा ये क्लब की लीडरशिप को होना चाहिए। इसमें डिस्ट्रिक्ट का कोई कसूर नहीं होता है, इसलिए कि डिस्ट्रिक्ट तो बाद में बनता है, पहले क्लब से जो है ना फिर आदमी को आगे जाया जाता है। यस, 100% सर, 100%। नूर सर, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने मिली आपसे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया हमारे सारे व्यूअर्स के साथ। तहे दिल से सर बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो पर आ जाए, पर थोड़ा सा वक्त का तकाजा है, तो मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि अगर हमारे जितने आज व्यूअर्स हैं वो कई सारे कंट्रीज से अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, लायंस हैं, नॉन लायंस भी हैं, लियोज हैं, अगर उन सब के लिए अगर एक मैसेज अगर आप देना चाहें तो वो क्या होगा सर? आपने जिस मोटो को सामने रख करके लायनिज्म ज्वाइन किया है उस पे कायम रहें, उस पर वर्क करें। अब आपको जो भी चैलेंज वर्क दिया जाता है उसको आप अपना चैलेंज समझें और चैलेंज को कबूल करें, और इसी में लायनिज्म की तरक्की है। बिल्कुल। नूर सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपसे दरख्वास्त करूंगा मैं कि अगर आप हमारे साथ 20-25 मिनट अगर आप हमारे साथ बैक स्टेज जुड़े रहे तो आखिरी 5 मिनटों में मैं आपको फिर से स्क्रीन पर लाना चाहूंगा सर। मैं जुड़ा हुआ हूँ जी, मैं जुड़ा हुआ हूँ। थैंक यू सो मच नूर साहब। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल सर। Well, ladies and gentlemen, as expected, it was an absolutely absorbing discussion of Lionism and its implications towards every walk of life. We are sincerely thankful to Lion Noor Sayyam sir for sharing his incredible wealth of intelligence with all of us and teaching us the genuine meaning of service. Mind you, he joined us when the power cuts was actually happening at his particular place, and he still joined us, which basically showcases the amount of dedication that the man has even today towards Lionism. Moving on to our next guest for tonight. He's also a lion par excellence, a man who has tackled the mantle of responsibility and with utmost pride and merit, having personified leadership from a very early age, leading his club and now the district to spectacular heights. Well, since his advent into the movement back in 1995 with the Lions International, he's proved his worth to the fraternity in numerous areas of service, leadership, and membership. Since the very beginning, he has been one of the most active Lions and has inspired many people with his contribution at the club, district, as well as the multiple. On his way to the esteemed district governor position and post that the multiple council chairman position, he's also been an exemplary performer at various designations in the Lionistic fraternity, and even post that he continues to serve the system with utmost diligence and dedication. Well, having always conceived new ideas, he also established many service projects. The most prominent one of them all is the Lions Block, IDARIEU, which is a school and college for the blind and deaf. This was an extremely challenging task, and we will definitely talk about this particular project also once he comes on board with us. Well, owed to his spectacular work ethic, he has also been at the helm of receiving numerous awards at every front in the Lionistic organization and avenues. He's a recipient of the International Appreciation Certificates from the President and leadership medals, apart from various accolades at the district as well as the multiple level. Apart from this, he's also a spectacular individual with distinctive achievements, like compiling a voluminous book which says A Century of Lions on the centenary of the LCI, the Lions Club International, and has been allotted the ISBN number for the same. The book is available in all the major libraries of Pakistan. Apart from his Lionistic prowess, his company deals in import, marketing, promotions, and distributions of surgical, orthopedic, astronomy, and medical products throughout the country, representing a number of world-renowned manufacturers and companies in this field. Ladies and gentlemen, it's an absolute pleasure for me to call upon the man with a vision to take Lionism forward and to the next level, Lion Syed Zafar Iqbal, sir. Hello, sir. How are you? Do you hear me?
Yes, yes, sir. Absolutely. I can hear you very clear. Thank you so much, firstly, Syed Saab, for coming on the show, sir. Thank you so much for taking your time. Thank you, Line Nadeep Ningam. Ningam is better, I think, for me, and for your kind words and kind introduction for me. Thank you very much. And once again, initially, I want to say thank you very much for giving me this chance to introduce, to share my views on this excellent forum. Thank you, sir. Thank you. Well, Syed Saab, let's just directly get into it. थोड़ा बहुत हम आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहेंगे, जिस तरीके से हम नूर साहब को भी लेके गए थे. हमारे व्यूअर्स सर सारे के सारे आज जो जुड़े हुए हैं, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जब भी हम हमारे व्यूअर्स को किसी भी सेलिब्रिटी लायन से मिलवाते हैं, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी ज्यादा हम रिलेटिविटी उनके साथ अगर क्लियर कर पाएं, क्योंकि सब लोग आप लोगों को उस स्टेज पर देखते हैं जहां पर you've been district governors and you've been multiple council chairperson. So थोड़ा बहुत आपके निजी जिंदगी के बारे में भी जानना चाहेंगे सर, कि आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ पले बड़े, और लायनिज्म के साथ आपका नाता सर किस तरीके से शुरू हुआ सर? Well, Ningam, in 1958 I born at Karachi, and I completed my education in 1980. And just after completing my education, I started my business. It's few jobs, and after a few jobs, I started my business. In 1986, married with Shazia. She is also a line. And in I started my career with the business of medical and surgical appliances products. And since from the beginning, this is the only one earning source and my interest source. So I'm continuing. And I have one daughter and one son. Both are married. Alhamdulillah. My daughter is a doctor and already a faculty in a medical college and university. My son is an engineer and but also is in my business. I have, Alhamdulillah, 4 grandchildren and permanently settled in Karachi. Yes. Lovely. सर थोड़ा सा इसके बारे में भी जानना चाहेंगे आप कि आपका लायनिज्म के साथ जुड़ाव किस तरीके से हुआ, और 1995 में जिस तरीके से आपने ज्वाइन किया. जी. Okay. In 1995, Ningam, I have at that time मेरा बैंक अकाउंट हमारा एक बैंक है यहाँ पे, यूनाइटेड बैंक, उसमें था. उसी बैंक में नूर साहब भी काम करते हैं. ब्रांच हमारी इनकी डिफरेंट थी, लेकिन इनका भी करियर वो यूनाइटेड बैंक से था. तो हमारे बैंक मैनेजर ने मुझे 200 रुपीज का उस वक्त जो है वो 2 कार्ड सेल किए कि जी वो मेरे पास कहीं से कार्ड सेल होने के लिए आए, तो आप प्लीज, ये कोई लायंस का इवेंट है, आप. उन्होंने मुझे जैसे मैंने उनको ऑब्लाइज करने के लिए वो 400 रुपीज दिए और वो कार्ड हमने लिए. 5 स्टार होटल में वो फंक्शन था. तो मैं, मेरी मिसेज, बच्चों के भी कार्ड हमने परचेज किए. बच्चे उस वक्त छोटे थे, तो वो फंक्शन हमने अटेंड किया. वो उस वक्त कोई एनुअल कन्वेंशन था एक्चुअली, और उस कन्वेंशन में मैंने ये देखा कि लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज जो है वो शेयर कर रहे हैं. और बड़ी बात ये थी कि कुछ ऐसे पेशेंट को वहाँ पे लाया गया जिनकी कैटरेक्ट सर्जरीज हो चुकी थी और वो इंतहाई नीडी लोग थे. तो एक अजीब माहौल था मेरे लिए. मैंने जिंदगी में कभी चैरिटी हमने की तो कई दफा थी कि मुख्तलिफ इदारों में जाके पैसे डोनेट किए थे, लेकिन इस तरह नहीं देखा था कि कभी के लोग खुद इस तरह जो है इन्वॉल्व होते हो इन सर्विस एक्टिविटीज में, और फिर उन अपने सक्सेस स्टोरीज को जो है वो इस तरह शेयर करते हो. तो हमारे जहन में कॉन्सेप्ट यही था कि चैरिटी जो है ये सिर्फ मुख्तलिफ चंद इंस्टीट्यूशंस का हक है और हम जाके उनको पैसे दे दें और वो जाके चैरिटी करें. लेकिन बहरहाल वो मेरे लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट था और मैं बड़ा उसमें इमोशनल भी हुआ. उसी वक्त मैंने वापसी में अपनी मिसेज से कहा कि हमें भी इनको जो है वो ज्वाइन जरूर करना चाहिए. उससे पहले मेरे जहन में ये आ रहा था कि ये लायंस क्लब क्या है. गूगल का ज़माना नहीं था, स्मार्टफोन भी हमारे पास नहीं होते थे. तो मेरे जहन में ये था कि लायंस क्लब मीन्स कि ये बहुत बड़े लोगों का क्लब है, जिनमें से जो बड़े बड़े लोग हैं उनके घरों में जो है वो लायंस जो है जरूर ये इन्होंने अपने एक जो है वो रखे हुए होते होंगे. शायद ये लोग वो लायंस का वहाँ पे डिस्प्ले करें. तो मैं अपने बच्चों को लेकर गया था. बहरहाल उस तरह की चीज़ तो नहीं मिली,
लेकिन मैं सर्विस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ और उसी दिन मैंने डिसाइड किया और विद इन अ वीक फिर मैनेजर से मैंने कहा, मैनेजर ने जिनसे कार्ड लिए थे, सरवर मसूद साहब हमारे लाइन मेंबर थे, इस वक्त तो दुनिया में नहीं है, उनसे हमारी मुलाकात हुई और विद इन अ वीक मैंने और मेरी मिसेज ने एक साथ ही हम क्लब ज्वाइन किया एंड सिंस फ्रॉम 95 आज हम 2024 में है, एक विदाउट एनी डिस्टर्बिंग और विदाउट एनी गैप हमारा ये सफर जो है कंटिन्यूटी का अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 30 इयर्स तकरीबन हमारे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, साथ ही 29-30 इयर्स जनाब। फैबुलस। आई थिंक सर बहुत ही ज्यादा शानदार सफर रहा है आपका। काफी मैंने पढ़ा आपकी प्रोफाइल में भी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इनिशियली सर थोड़ी सी मैं इस बारे में बात करना चाहूंगा कि ऑब्वियसली यू कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड और कई बार हम ये देखते हैं कि कई लोगों की ये एक आर्ग्यूमेंट होती है मेंबरशिप से लेकर फॉर श्योर कि कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं पूरी दुनिया में और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा चैरिटेबल काम कर रहे हैं, सोसाइटल वेलफेयर के लिए भी काम कर रहे हैं। तो लायनिज्म के लिए में क्या ऐसा अलग है जिसकी वजह से लायनिज्म से जोड़ा जाए? तो अगर आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहें कि आपके हिसाब से इतना ज़्यादा टेन्योर है आपका लायनिज्म में, तो वो एक क्या ऐसी चीज़ है जो लायनिज्म में एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट है? लायन निगम, मैं तो ये समझता हूँ कि रियली अगर मैं लायंस क्लब से ना जुड़ता इन 95 तो शायद मैं ये समझता हूँ कि मेरी जिंदगी का मकसद ही जो है मैं अपने मकसद को नहीं पा सकता था। मेरा भी शुमार उन्हीं लोगों में होता कि 9 to 5 अपना ऑफिस जाना, पैसे कमाना और उन पैसों को जो है वो दुनिया भर में खर्च करना, मुलाजिमों की तादाद बढ़ाना अपनी और अपने आउटलेट्स खोलना, यही मेरा काम ही रहता है, जो जैसे मेरे सारे कुलीग और कॉम्पिटिटर ये करते हैं। लेकिन लायनिज्म से पहले मैंने पहले बताया अपने इंट्रो में, मेरा ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था मेरे जहन में कि ये इस तरह के लोग जो कि वेल ऑफ होते हैं वो भी अपने हाथों से सर्विसेज जो है वो दे सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि लायनिज्म से तो हमारी पूरी दुनिया ही बदल गई, अगर मैं अपने अपने दिलो दिमाग की दुनिया कहूँ। मतलब देखिए, हर मजहब के अंदर रिलीजन में पैसे चैरिटी करने का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता होगा। इन इस्लाम, इन आवर रिलीजन, जो भी हमारे यहाँ ये कंपलसरी है कि साल में एक बार आप अपने पूरे वेल्थ का आप एक स्टेटमेंट बनाएं और जो भी आपका स्टेटमेंट बनता है, फर्ज करें आपके पास 100 रुपीज आपका कैपिटल है, तो 100 रुपीज का 2.5% जो है वो आपने जो है वो चैरिटी नीडी लोगों के लिए करनी है। तो हमारे यहाँ एक अच्छा अमाउंट जो है वो चैरिटी का जमा होता है ऑटोमेटिकली, चाहे वो हम अपने हाथ से डोनेट करें या मुख्तलिफ इदारों को दे दें डोनेट करने के लिए। तो मैं उससे पहले 95 से पहले ये होता था कि जो भी हम पैसे हम साल में हम निकालते थे वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में जाके दे दिया करते थे कि 10,000 किसी जगह दिया, 50,000 किसी जगह दिया और सब पैसे दे के फारिग हो गए। 95 के बाद अब ये होता है कि पूरा एक रजिस्टर हमने मेंटेन किया हुआ है, अपने लोगों तक खुद पहुंचने की कोशिश करते हैं। मतलब बिफोर 95 की कॉन्सेप्ट नहीं था कि नॉट इन माई ओनली फैमिली, इन मेरे खानदान में ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि हमने किसी की आंखों की सर्जरीज भी कराई हो। इन 95 से पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि हमने किसी के डायलिसिस कराए हो। 95 से पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि किसी को जो है वो घर बना के दिया हो। तो अब तो एक समझ लीजिए कि इतना बड़ा काम लायंस क्लब ने हमें दिया कि हम अपने पैसों को अपनी आंखों के सामने, किसी दूसरों के पैसे से तो लेते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो हमारी अपनी अमाउंट है उसको जब हम अपनी आंखों से, अपने हाथों से, अपनी फैमिली के साथ हम खर्च कर रहे होते हैं कम्युनिटी के अंदर, तो जो उससे राहत मिलती है उसका तसव्वुर मैं तो अल्फाज में आपको बयान नहीं कर सकता कि उसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है। इवन ये कि जब हमारे बच्चे अपने पैरों पे खड़े होने शुरू हुए तो उनके भी पैसे आने शुरू हुए, उन्होंने कहा जी पापा इतने पैसे हमारी तरफ से भी फला प्रोजेक्ट में। तो मतलब असल अमाउंट चीज ये है कि हम अपनी चैरिटी को, जो कि हमारे यहाँ 90% लोग कर रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अपने हाथों से अपनी चैरिटी को अपनी आंखों से देखना ये बहुत कम लोगों को नसीब में आता है। तो आई एम थैंकफुल टू लायंस क्लब कि जिसने हमें ये शऊर दिया कि हम किस तरीके से लोगों की खिदमत कर सकते हैं जनाब। एब्सोल्युटली। आई थिंक सारे व्यूअर्स के लिए मैं ये डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि जैसे सैयद साहब ने भी बताया, लायंस एक्सट्रीमली ट्रांसपेरेंट है एज एन ऑर्गेनाइजेशन और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इतनी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है
और एक डिस्टिंक्टिव क्वालिटी जो लायंस में है वो ये भी है कि लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन से जितना भी पैसा चैरिटी के लिए जाता है वो 100% इज यूज्ड फॉर चैरिटी एंड 0% इज यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट. सो जैसे सैयद साहब ने बताया, उसके अलावा जो तसव्वुर मिलता है जब किसी की मदद की जाए और नीडी को कोई फायदा हो, तो उससे ज्यादा बड़ी बात कोई हो नहीं सकती. थैंक यू सो मच सर, ये टू शेड लाइट ऑन दिस. दो बहुत जबरदस्त चीजें हैं सर जिनके बारे में आपसे बात करना चाहूंगा. ऑब्वियसली सबसे पहले आपका जो प्रोजेक्ट था, the project of the Lions block of IDA, the school for the college of school and college for the blind and deaf, उसके बारे में सर डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए सर. ये लाइनिंगम एक्चुअली 2014 में जब ये सेंटेनरी सेलिब्रेशन शुरू हुई थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो पाकिस्तान के लायंस ने मुझे 3 साल के लिए मुंतखब किया एज ए चेयरमैन सेंटेनियल सेलिब्रेशन पूरे MD 305 के लिए. तो मैंने पूरे पाकिस्तान के लायंस को अपना एक प्रोग्राम दिया कि शहर में आप किस तरीके से अपनी सेलिब्रेशंस करें, और उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ यही थी कि सेलिब्रेशन में सिर्फ अपने सेलिब्रेशंस को सिर्फ केक कटिंग सेरेमनी तक महदूद ना रखें, बल्कि अपने अपने शहरों में कोई ना कोई प्रोजेक्ट इस सेंटेनरी के मौके पर ज़रूर बनाएं. तो वहीं मुझे ये पहली दफ़ा विजिट करने का मौका मिला. एक आइडिया स्कूल है कराची में, ये 1921 में फॉर्म हुआ था. मतलब आज से तो तकरीबन 104 इयर्स पहले जब मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था, तो उस वक्त तकरीबन इसको 94 इयर्स हो गए थे. तो वहाँ मेरा जाना हुआ, तो वहाँ पर एक बिल्डिंग थी, उसको रेनोवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और एक नया ब्लॉक की ज़रूरत थी. तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसे दरकार थे. मोर देन 10 मिलियन रुपीस जो है वो हमें चाहिए थे उस वक्त. और लेकिन लकीली मैं उस वक्त पूरे पाकिस्तान में MD चेयरपर्सन सेंटेनियल सेलिब्रेशन था और मुझे हर जगह जाने का मौका मिलता था, और एज ए प्रोटोकॉल कहीं ना कहीं 2-2 मिनट की स्पीच भी हमारी हो जाया करती थी. तो वहीं पे फिर हमने ये प्रोग्राम बनाया कि हम एक ब्लॉक है, ये तकरीबन इसका इफ्तिताह, इसका जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इत्तेफाक से 2015 में आई थिंक, यस, वो आए हुए थे हमारे पास महेंद्र अमर सूर्या साहब, हमारे पास इंटरनेशनल प्रेसिडेंट. उनसे हमने इसका इफ्तिताह करवाया, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करवाई. और 2017 और 18 में जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, तो नरेश अग्रवाल साहब यहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने इसका जो है वो इनॉग्रेट किया. तकरीबन 9000 स्क्वायर फीट की ये जगह है. इसमें कई रूम्स हैं, बड़े बड़े हॉल्स इसमें मिलेंगे आपको. और इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि पूरे पाकिस्तान के लायंस ने जो है ना इसमें कंट्रीब्यूट किया. मिनिमम 100 रुपीज से लेकर 1 मिलियन रुपीज तक का कंट्रीब्यूशन हमें इसमें आया. और जब इसकी सेलिब्रेशन थी, जब इसका इनॉग्रल था, तब तकरीबन पूरे पाकिस्तान के लायंस इसमें जमा थे, इसमें उस मौके पे मौजूद थे. और ये एक ब्लाइंड और डेफ बच्चों का स्कूल है. इस लायंस ब्लॉक में जो है जो डेफ बच्चे हैं उनके लिए जो है वो एक कटिंग सेंटर बनाया गया है. जो बच्चे जो है वो स्टिचिंग का काम करते हैं. जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनके लिए जो है वो क्या कहते हैं, एक कॉल सेंटर का जो है एहतमाम किया गया है. एक ब्यूटी पार्लर इसी लायंस ब्लॉक के अंदर जो है ये इसमें कायम है, जिसमें डेफ बच्चे जो है वो काम करते हैं और जो ब्लाइंड बच्चे जो है वो मसाज का काम कर रहे होते हैं. इसमें जो है वो कंप्यूटर सेंटर भी है. तो उस लिहाज से एक हमने तो ये बिल्डिंग बनाकर आइडियो स्कूल फॉर द ब्लाइंड एंड डेफ को जो है वो डोनेट कर दी. लेकिन ये कि इसका दूसरा रिजल्ट ये निकला कि फिर उन्होंने जब ये देखा कि लायंस इतने शॉर्ट नोटिस पे इतना बड़ा काम कर सकते हैं, तो उन्होंने लायंस को एक परमानेंट चेयर जो है वो अपने इदारे के अंदर दी. और मैं जो कि वहाँ पे सिर्फ इस ब्लॉक को बनाने के लिए गया था चंद महीनों और चंद सालों के लिए, तो मुझे उन्होंने जो है वो ट्रस्टी मेंबर भी बनाया. तो मैं आई एम देयर एज ए ट्रस्टी मेंबर, और उनका मैं जो हूँ वो एज ए ऑफिस बेरर भी मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ. और 1921 में जब उस इदारे की सेंटेनियल सेलिब्रेशन हुई आइडियो स्कूल्स की, तो उसका भी उन्होंने मुझे जो है वो सेंटेनरी चेयरपर्सन बनाया. और उस मौके पर हमने हुकूमत पाकिस्तान से जो है एक कमेमोरेटिव स्टैम्प जो है वो इशू हुआ हमारे उस स्कूल के लिए. और लायंस जो है वो साल में कई बार इस प्रोजेक्ट का विजिट करते हैं. एक बहुत बड़ी, बहुत वसी और मैदान है, कई इसमें बिल्डिंग्स बनी हुई है. तकरीबन 13 बिल्डिंग्स हैं
जिसमें से एक बिल्डिंग जो है वो लायंस ब्लॉक पे बहुत बड़ा कुशादा जो है वो लिखा हुआ आपको नजर आएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि एक हम सब जो है ये इसको फख्र करते हैं। और कभी आपका पाकिस्तान आना हो, बल्कि मैं आपको कल ही उसकी एक पिक्चर जरूर भेजूंगा जहाँ पे नेम प्लेट लगी हुई है नरेश अग्रवाल साहब की, जिन्होंने जो है वो उसको इसका जो है वो इफ्तिताह किया था जनाब जी। 100%। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है और आई होप ऑल द बेस्ट एंड लॉट ऑफ विशेस की बहुत अच्छे से चलता रहे वो ब्लॉग। इतना ज़्यादा नोबल लेवल पर जो काम होता है तो आई बिलीव काफ़ी सारे लोग साथ आ ही जाते हैं एंड इट इज़ ग्रेट कि आपने ये इनिशिएटिव लिया। दूसरी जो बहुत इंटरेस्टिंग सर बात है आपके प्रोफाइल में वो थी द सेंचुरी ऑफ लायंस, द बुक जो आपने लिखी या कॉन्सेप्शलाइज करी। सबसे पहले तो सर जानना चाहूंगा कि क्या आइडिया था इस बुक के पीछे और किस तरीके की चीजें और किस तरीके के वाकयात इस किताब में कवर किए गए सर? एक्चुअली लायन इंघम जब मुझे 2014 में ये सेंटेनियल सेलिब्रेशन का चेयरमैन बनाया गया, तो लकीली उससे तकरीबन 2-4 महीने पहले एक बुक मुझे मिली। वो मैंने बाजार से परचेज की। उसका नाम था 100 बेस्ट CEOs ऑफ पाकिस्तान। मतलब बेस्ट कंपनीज थी, उनके 100 जो CEOs हैं उनको उन्होंने एक जगह जमा किया, उनकी प्रोफाइल लिखी, उनके अचीवमेंट, और वो तकरीबन 900 प्लस पेजेस की वो एक किताब थी, बुक थी, और मुझे बड़ी पसंद आई। और वो क्योंकि उन्हीं दिनों में मैंने बुक ली हुई थी तो मेरी टेबल पर थी। फिर जब ये जिम्मेदारी दी गई सेंटेनियल सेलिब्रेशन की, तो मैंने गूगल पे सर्च किया कि सेंटेनियल सेलिब्रेशंस के मौके पे क्या क्या काम हो सकते हैं। और मैं उसमें कमोमरेटिव स्टैम्प का काम सामने आया, ये परमानेंट प्रोजेक्ट्स का काम सामने आया, और ये भी चीज सामने आई कि इस मौके को यादगार बनाने के लिए जैसे यकीनन 1917 में जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी तो हम और आप इस दुनिया में नहीं थे। ये एक हकीकत है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जब इसकी दूसरी सेंटेनियल सेलिब्रेशन होगी तो उस वक्त भी मैं और आप नहीं होंगे। तो लेकिन देखिए, अगर हम कोई ऐसा काम जरूर कर जाए जो कि जैसे कि मुझे इस तरह की कोई बड़ी बुक नहीं मिल सकी इन 100 ईयर्स की, तो मेरे ध्यान में था कि जब नेक्स्ट सेंटेनियल सेलिब्रेशन हो तो उस वक्त कोई चेयरमैन आए पाकिस्तान या दुनिया में किसी भी जगह, तो उसके पास एक आइडिया जरूर मौजूद हो। तो ये एक बेसिक आइडिया था, और मैंने स्टार्ट लिया कि इसमें हमने मैसेजेस लिए। सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल का मैसेज, और हिलाल अहमर के सेक्रेटरी का मैसेज, और बड़े बड़े इसके साथ साथ तमाम इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जो डायरेक्टर्स हैं, AP सिंह साहब वगैरह, जितने भी लोग थे, इन सब के तकरीबन मोर देन 50 मैसेजेस हमने पूरी दुनिया से हमने जमा किए, और इस बुक के हवाले से थे, और जो कि पूरा इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी पहले लोगों को दे ही दिया था, तो ये मैसेजेस हमें मिले। उसके बाद फिर हमने जो है वो पूरी दुनिया में जहां जहां लायंस क्लब है उन ममालिक की डिटेल उनके फ्लैग्स से ली। वो एक बड़ा लोगों को अच्छा लगा कि अगर 210 कंट्रीज में लायनिज्म है तो 210 कंट्रीज के फ्लैग्स लोगों को देखने को मिले। एक्चुअली ये कंपाइल वर्क था। फिर लायंस क्लब दुनिया में कैसे शुरू हुआ, 2017 से लेकर 2017 तक की हिस्ट्री हमने इंटरनेशनल से ली। मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में जब हमारा बना उसकी हिस्ट्री ली। पाकिस्तान में लायनिज्म कैसे आया उसकी हिस्ट्री ली। इंडिया में, नेपाल में, हमारी रीजन में लायंस क्लब किस तरह आया उसकी हमने हिस्ट्री ली। हमारे पूरी दुनिया में जितने भी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट रहे उनकी पिक्चर्स हमने इसमें दी। इंटरनेशनल डायरेक्टर्स की डिटेल हमने नाम की हद तक इसमें दी, और पूरा मेंबरशिप के जो जो प्रोग्राम इसमें होते थे वो हमने दिए अपने एरिया। मत कट शॉर्ट, ये इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि पूरे पाकिस्तान में उस वक्त जितने भी हमारे परमानेंट प्रोजेक्ट्स थे, मोर देन 100 प्रोजेक्ट्स थे, उसकी लिस्ट हमने एड्रेसेस के साथ इसमें हमने प्रोवाइड की। और तकरीबन आउट ऑफ 100 तकरीबन 55 या 60 हमारे परमानेंट प्रोजेक्ट्स ऐसे थे कि जिनकी हम उनके साइट पे हमें पहुंचने का मुझे मौका मिला, उनकी तस्वीरें हमने खींची, और तकरीबन A4 साइज की ये बुक थी। हाफ ऑफ पेज हमने जो है वो तमाम इन लोगों का अपने प्रोजेक्ट के बारे में दिया। पाकिस्तान में जितने पास गवर्नर, पास काउंसिल चेयरमैन, जितने पाकिस्तान में जितने क्लब्स बन चुके हैं उसकी डिटेल दी। तकरीबन 900 पेजेस की ये बुक है। ये कंपाइलेशन वर्क था एक्चुअली। और फिर हमने जो है उसको रजिस्टर कराया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। जो बुक फाउंडेशन जो है हमारी, जो नेशनल लाइब्रेरी है,
और उसके थ्रू जो है वो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में ये बुक रखने का जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें शर्फ हासिल हुआ। इंटरनेशनल में भी हमने जो है वो हेडक्वार्टर में ये बुक्स हमने भेजी, वहां पर भी मेरा उसके बाद जाना नहीं हुआ 2018 के बाद। इंडिया में AP सिंह साहब को, नरेश साहब को, आपके संगीता जातिया साहिबा को, परवीन शाजिर साहब, तमाम बड़े बड़े लीडर्स को जो है और भी दोस्तों को हमने भेजी यकीनन ये बुक्स। और ये मतलब ये फ्रीली अवेलेबल थी फॉर लीडर्स एंड लाइब्रेरीज, लेकिन हमने इसको लायंस के लिए जो है ना इसकी कॉस्ट रखी थोड़ी बहुत, क्योंकि अगर लायंस के लिए भी बिल्कुल आप फ्री कर दें तो फिर उसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं रहती, बहुत ही इसके नॉमिनल चार्जेस थे। और हमने थाउजेंड्स के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब प्रोजेक्ट रहा, और इसका बाकायदा इफ्तिताह हुआ, इस बुक की लॉन्चिंग हुई, हमने अपने मल्टीपल कन्वेंशन में इसकी लॉन्चिंग की, और जो भी इंटरनेशनल डिग्निटरी आती है मैं ये बुक जो है वो पेश करता हूँ जनाब अली। इसका नाम हमने रखा अ सेंचुरी ऑफ लाइंस, यानी कि लाइंस की 100 इयर्स की जो हिस्ट्री है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर हो, चाहे वो हमारे मल्टीपल MD305 या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो हमने इसमें देने की कोशिश की। इवन ये कि क्लब लेवल को हमने इसमें कवर किया है। आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त अचीवमेंट है, क्योंकि जिस तरीके की कंपाइलेशन आपने अभी हम सब लोगों के सामने बताई भी, आई गेस इट इज़ अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत ज़्यादा काम होता है। इट इज़ नॉट ईजी टू पब्लिश सच अ बुक, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा होता है सबके पास, लेकिन उसे एक जगह कंपाइल करके ब्यूटीफुली प्रेजेंट करना ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको उससे रिलेटेड। थैंक यू। एंड 100% चाहूँगा कि हाँ कभी ना कभी मैं भी वो किताब पढ़ सकूँ, एंड इट विल बी अ ग्रेट ऑनर फॉर मी आल्सो टू हैव दैट बुक। मूविंग ऑन सर, जी, एंड मूविंग ऑन सर, डेफिनेटली आप भी नूरस साहब के तरीके से ही आप काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड रहे हैं टुवर्ड्स लर्निंग इन लायनिज्म। आपने भी कई सारे लीडरशिप इंस्टीट्यूट्स ऑर्गेनाइज भी करे हैं और उनमें सीखा भी है। तो थोड़ा सा आपका भी पर्सपेक्टिव मैं जानना चाहूँगा टुवर्ड्स लायंस लीडरशिप इंस्टीट्यूट्स, और कितने ज़्यादा इफेक्टिव हैं ये फॉर लायंस टू ग्रो प्रोफेशनली एज वेल एज पर्सनली। Lion Lingam, I was district governor in 2002-2003, और बिफोर 2002-2003 पाकिस्तान में हमें परमिशन नहीं थी कि हम कोई लीडरशिप इंस्टीट्यूट जो है वो ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। जैसे ही मेरी गवर्नरशिप खत्म हुई 2003 में, तो उस वक्त हमारे काउंसिल चेयरमैन ने शुएब हैदर साहब थे, और उन्होंने टास्क लिया कि हमें जो है वो RLLI पाकिस्तान में लेकर आना चाहिए। तो 2003 में हमने RLLI के लिए रिक्वेस्ट दी लीडरशिप डिवीजन को। तो उन्होंने कहा कि अब आप लेट हो गए, तो लिहाजा फंड हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, फंड्स हम प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट ईयर। लेकिन डेडिकेशन इतनी थी हम लायंस में और हमारे काउंसिल चेयरमैन में ने कि हमने कहा जी आप हमें से परमिशन दें, फंड्स हम खुद जनरेट करेंगे। तो विदाउट फंडिंग फ्रॉम हेडक्वार्टर हमने 2003 में पहला RLLI अपनी मदद आपके तहत जो है वो ऑर्गेनाइज किया। आज तक पाकिस्तान में तकरीबन 15 RLLI हमारे हो चुके हैं, और मैं ऑर्गेनाइजेशन साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा रहा हूँ। तकरीबन 9 और 10 RLLI ऐसे हैं जिसमें मेरी किसी न किसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो मेरी ऑर्गेनाइजिंग में मेरा जो है वो रोल रहा है। मैं ये समझता हूँ कि लर्निंग जो है वो हम लायंस के लिए जो है बहुत ज़रूरी है। मैं अपने दोस्तों से भी कहता हूँ कि एक सोशल वर्कर बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, एक अच्छा, लेकिन एक अच्छे सोशल वर्कर के लिए जो है वो उसको वेल इक्विप, वेल अवेयर होना बड़ा ज़रूरी है। अगर हमारी ट्रेनिंग एक लायंस की होगी तो वो ज़्यादा बेहतर अच्छा सर्विस प्रोजेक्ट जो है वो परफॉर्म कर सकता है, सर्विस प्रोजेक्ट जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकता है। ये लर्निंग जो है, ये लर्निंग देखिए आजकल आप किसी जगह जाएं, कोई कोर्स अटेंड करें तो उसमें हज़ारों रुपए जो है हमें देने पड़ते हैं। लायंस क्लब इंटरनेशनल ने एक पूरे समंदर को जो है ना ला के हमारे और आपके जो है सामने रख दिया है। और ये एक कितनी बड़ी, मैं समझता हूँ कि लायंस के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जिसका कोई भी बड़े से बड़ा अवार्ड, बड़े से बड़ा रिवॉर्ड, बड़े से बड़ा मनसब इसका नेमोल बदल है ही नहीं, जो कि दुनिया के 1.4 मिलियन लायंस को जो है वो एक फिंगर टिप के ऊपर जो है ना वो लर्निंग मिलती है। और जब भी मैं अपना ज़ाती तौर पे मैं महसूस करता हूँ कि
जिस चीज की मैं कभी भी कमी महसूस करता हूँ तो वो लर्न पे गए और वहां पे जाके जो है आपने जो कोर्स आपने करना है वो हालांकि वो 10 दफा किया हुआ होता है हमने, लेकिन दोबारा उसको हम उसमें शामिल हो जाते हैं और अपनी सारी चीजें जो है, मैं समझता हूँ कि ये हर लाइन मेंबर को जिंदगी में कम से कम साल में एक बार जो है वो इस तरह के कोर्सेज जरूर करने चाहिए। 100%. आई थिंक बहुत ही ज़्यादा एनरिचिंग कॉन्वर्सेशन रहा है सर. एज आई टोल्ड नूर सर ऑल्सो, सैयद सर आपसे भी बात करके बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली हैं, पर जैसे शो का निज़ाम है थोड़ा सा वक्त का तकाजा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले हमारे टेक्निकल डायरेक्टर से अगर वो नूर साहब को भी स्क्रीन पर ला सकें प्लीज़. जी. सबसे पहले तो शुरुआत करूंगा नूर सर आपसे. थैंक यू सो मच सर कि आप शो पर आए. बहुत सारी चीज़ें आपने हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करी. मैंने स्पेशली मेंशन किया जब हमारा सेगमेंट ख़त्म हुआ कि डिस्पाइट पावर कट आपने हमें ज्वाइन किया और उसके बावजूद भी आपने इतनी अच्छी तरीके से सारे सवालों के जवाब दिए. सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग ऑल द इनकन्वीनियंस एंड स्टिल कमिंग ऑन द शो एंड giving us all the knowledge, sir. Thank you so much, Noor sir, for coming on the show. Okay. It's my honor. It's my honor. And Syed sir, thank you so much. You've been brilliant. जिस तरीके से आपको एक खिताब भी आई थिंक दिया गया था, the beacon of light, आई थिंक उसी तरीके से आपने सारे सवालों के जवाब भी दिए. The work that you have been doing is extremely inspiring. और you know, I would just request and hope and pray and wish both of you कि आप लोग इसी तरीके से काम करते रहें and you work towards Lionism and keep inspiring us and keep giving us all the knowledge. Thank you so much. Thank you so much, both of you, for coming on the show. We are thankful to you and PID Raju Manwani Saab who invited us. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Well, ladies and gentlemen, that was the 180th episode of The Soul of Lions. Once again, it was an absolute blockbuster. You must have seen two people who've been serving Lionism for more than 3 decades as they continue in the journey and they continue to inspire people like us also to contribute towards community welfare and make the world a better place to live in. Well, this was the 180th episode. This is your host, Lion Navdeep Nigam. Until next week, it's good night and goodbye.